Hello students, how are you guys doing? I welcome you to the Infinity Vision platform, and today we are going to begin combinatorics under quantitative aptitude series chapter 8. Now combinatorics, I'm sure many of you must be hearing this name for the first time, so let me explain what this combinatorics is. Combinatorics is basically a branch of mathematics which deals with counting. Now, if you talk about that, why we are studying and is it relevant for a student for ninth and 10th? So if you ask me, according to NCERT curriculum, this chapter combinatorics under the name of permutation and combination is formally introduced in class 11th. But why class ninth and 10th has to study? So definitely if you are preparing for exams such as PRMO, KVPY and NSCGS. So NSCGS is an examination relevant for class 9 students, and PRMO is a examination relevant for class 8 to 12 students. And if you look into the syllabus of PRMO, if you look into the syllabus of KVPY, if you look into the syllabus of NSCGS mathematics, this permutation combination or the name combinatorics is very much relevant when you look into the syllabus, and this plays a very important role as well. This branch of mathematics is considered one of the most difficult branch of mathematics. You must be thinking counting is something very easy, but definitely it's not that easy. And if you ask me that have we done this before in any other form, so if you remember chapter 2 and chapter 3 of quantitative aptitude series, where we learned how to find the number of factors and how to find the sum of factors, there we learned how to count, and for that we learned the basic principle of counting. That was the principle of addition and principle of multiplication. If you remember, if you have forgotten, or if you have not watched, please do watch chapter 2 and chapter 3. That is very relevant if you are going to appear in these examination, and if you are really interested in the field of mathematics and you really want to explore this area. And this at the same time, if you are a serious candidate, for serious candidate means very you want to achieve these exams, you want to crack these exams, and you are very determined to achieve all these feats, then you have to really have to go for these combinatorics part. That is why we are beginning combinatorics, and I have just written part 1. So chapter 2 and chapter 3 also need to be dealt. If you haven't watched it, I'll be giving the link of chapter 2 and chapter 3 in the description box as well. And those who have already watched and they have forgotten, or they are feeling a little shaky in remembering those chapter 2 and chapter 3, that how to find the number of factors and all, so you need to go and revise that. And if you are like really good and you have mastered chapter 2 and chapter 3, then also you need to have a fresh look on that. Today we'll be beginning this combinatorics, so I just called it part 1. We'll be taking we'll be taking the relevant area of combinatorics, which is relevant for students of class 9, 10th and 11th for these examinations called PRMO, NSCGS and KVPY. And don't forget that whatever the combinatorics questions would be coming would be of somehow same level, be it PRMO, be it NSCGS, be it KVPY. So don't consider that you are in class 9, then you just have to go for it with a little preparation or lesser preparation than the students who are going for KVPY, because combinatorics is one of the most important portion of mathematics in these examination. They play a major role. And this topic called combinatorics is of course considered to be one of the most difficult, but when it comes to these exams, KVPY, NSCGS and PRMO, the area they touch is not very difficult. If you really get hold of basics in a right manner, then it won't be difficult for you to solve problems in these examinations called PRMO, NSCGS and KVPY. So I have brought questions for you in part 1, and I'll be just talking a little bit about the theory, just a quick theory, and then we'll be getting into the problem solving. So we'll learn the concepts more through problem solving, and some of the slides which I have talked about the theory, you just have to listen to me, and you have to write those theory in your personal hand notebook so that you can revise whenever the time comes. Okay, so let's begin the thing. And first thing that you can see in your slide is the definition of factorial. So you must be wondering what is factorial. So if you read, it says the following product of first
n natural numbers is called the n factorial and is denoted by n with exclamation mark, or you can also say a L-shaped bracket sign with n. So both of the sign is acceptable. Normally we put n with exclamation sign. Now what is n factorial? N factorial is basically the product of all the natural number from 1 to n. So if you say, someone asks you what is n factorial, you can say n into n minus 1 into n minus 2 up to 1, or you can also say 1 into 2 into 3 into 4 up to n. So it's just basically the product of first, if someone asks you what is n factorial, you just have to say it's a product of first n natural numbers. For example, you can see 4 factorial is nothing but 4 into 3 into 2 into 1, and 5 factorial is nothing but 5 into 4 into 3 into 2 into 1. At the same time, someone asks you what is 100 factorial, you're going to say 100 into 99 into 98 up to 1, or you can say 1 into 2 into 3 up to 100. Factorials of proper fractions and of negative integers are not defined. So if someone asks you what is minus 7 factorial, you are not going to answer that because it is not defined. If someone asks you what is minus half factorial, you are not going to answer that. If someone asks you what is pi factorial, you are not going to answer that because it is not defined. If someone asks you what is 1 by 2 factorial, you're not going to answer that. If someone asks you what is root 2 factorial, you're not going to answer that. So you are just going to define the factorials for natural numbers. And 0 is also defined as 0 factorial is also by definition considered 1, which we'll be talking in the next slide. So factorial n is defined only for whole numbers. You can say 0 factorial is defined, so you can say okay, factorials are defined only for whole numbers. Now what are the properties of factorial? So first property, you have to consider that 0 factorial equals 1. You have to understand that if someone asks you what is 1 factorial, you're going to say 1. If someone asks you what is 2 factorial, you're going to say 2 into 1. If someone asks you what is 3 factorial, you're going to say 3 into 2 into 1. But if someone asks you what is 0 factorial, you are going to say no, you are not going to say 0, you are going to say 1. You can consider for the case that it is by definition, but when we'll be dealing permutation combination in a greater detail, then we will talk why 0 factorial is 1. But for a time being, you just consider that 0 factorial is 1, just like a definition. Okay, now if someone asks you n factorial, you know it is 1 into 2 into 3 up to n, which you can see. And n factorial can be broken into n minus 1 factorial into n, right? If someone says what is 7 factorial, so you can say 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. So 1 to 6 is 6 factorial. So you can say 7 factorial equals 6 factorial into 7. So that is why it is written n factorial can also be written as n into n minus 1 factorial. Or you can take other way all around also. If I say there is 99 factorial, what is 99 factorial? 1 into 2 into 3 up to 99. And if I multiply 99 factorial with 100, so how many, what would the result would be? Of course 1 to 90 was 99 factorial with one more 100, so that becomes a 100 factorial. So you can say n factorial equals n into n minus 1 factorial. Properties of factorial, the C part, if two factorials, that is x factorial and y factorial, are equal, then what could be the case? One case could be that 0 factorial equals 1 factorial, because 0 factorial is also 1 and 1 factorial is also 1. So one case would be x is 0 and y is 1. Other case would be y is 0 and x is 1. So you can say x, this case, you can say this or this, because 0 factorial and 1 factorial is basically 1. So if someone asks you what is 0 factorial, you are going to say 1. If someone asks you what is 1 factorial, you are going to say 1. So if I say x factorial equals y factorial, it means x is 0 and y could be 1. You can also say x is 1 or y is equal to 0. Other than that, what could be the case? Other than that would be that x is equal to y is equal to k, because 1 factorial also equals 1 factorial. You can also say 3 factorial equals 3 factorials. So if basically if it is a natural number more than 1, then you can say they both x and y are going to be equal. And if it is less than 2, then there could be cases like x is 1, y is 0, y is 1, x is 0. This is what is not a very big funda. You just have to keep in mind that if someone gives you something like a factorial equals b factorial, so what you can interpret three things. One, a is 0, b is 1. Other thing is a is 1, b is 0. And third thing you can interpret, a is k and b is k, where k is any natural number. This is what I actually want to say.
Even you can say 0 factorial equals 0 factorial. So the other thing you can say is a is 0, b is 0. So these four things you can actually say when say a factorial equals b factorial, right? Let's go to the next property. n factorial ends in 0 for all n greater than 4. मतलब 4 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल्स आप निकालेंगे वो हमेशा 0 से एंड करेगा. Why? Any number ending with 0 means it is divisible by 10. And what is 10? 10 is basically 2 into 5. तो अगर आपसे कोई बात करता है 1 फैक्टोरियल, तो आपको डेफिनेटली पता है कि 1 फैक्टोरियल में कोई 5 नहीं है और कोई 2 नहीं है. सो यू कैन से 1 फैक्टोरियल इज 1. Someone asks you what is 2 factorial, you are going to say 1 into 2, that is 2. Someone asks you what is 3 factorial, you are going to say 1 into 2 into 3, that is 6. Someone asks you what is 4 factorial, you are going to say 1 into 2 into 3 into 4, that is going to be 24. But if someone asks you what is 5 factorial, you are going to say 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Now here comes 5, and of course when you go from first 5 natural numbers, you will see more 2's than number of 5's. So definitely you just need 1 2 and 1 5 to make 0. So what you can say 120. So from here the story will always have 1 0. 6 factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. It is going to be 720. Right, so again you see a 0. When the second 5 comes, definitely the story will go to 100. The third 5's come, the story goes to 1000. The fourth 5 comes, the story goes to 10,000. The 4 zeros, right? So number of 5's in n factorial for n greater than 4 is always less than the number of 2's. So you just need that 5 would always be lesser in number as compared to the 2's. So just the total number of 5's will define the total number of zeros it follows for any factorial, right? But you have to remember, after 4 factorial all numbers bear 0 in the last. It's a very important concept, and IIT JEE has asked questions on this concept. Okay, now let's go into the first question that says 2n factorial divides by n factorial. इसको सिंप्लीफाई करना है. अगर मैं सिंपल कुछ भाषा में लिखूं जैसे, तो ये है 6 factorial divided by 3 factorial, है ना. 6 is basically double of 3, or it is something like 100 factorial divided by 50 factorial. तो ये सारी चीज़ों को ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है. तो आई वॉन्ट बी गेटिंग इनटू सम specific cases, so I'll just go into the general cases. So it is basically 2n factorial upon n factorial. Now someone wants you to simplify this. Now if someone asks you what is 2n factorial, so you know that it is basically the product of all the natural number from 1 to 2n. So what you're going to write? You're going to write 1 into 2 into 3 into 4 up to what? You're going to go up to 2n. So you will go till n, then n plus 1, then n plus 2, and up to 2n. And what will be in the denominator? In the denominator you will be getting 1 into 2 into 3 into 4 into what? Into up to n. Right, this is how you are going to think. Now if you look into the numerator, you have 1 2 3 4 up to 2n, right? So you have all the natural number from 1 to 2n. Now if you try to arrange the odd together and even together, so you will get 1 into 3 into 5 into 7 up to 2n minus 1, just the number before 2n, right? What I did, I just clubbed all the odds together. Now what about the evens? You will get even as 2 into 4 into 6 up to 2n. So this I collected all the odds here, and this I collected all the evens here. What you see here, you see n factorial in the down. I can write just simply as n factorial. Okay, now this whole thing is 1 into 3 into 5 into 7 up to 2n minus 1. You can think like this, right? Now if you look here, you got n terms, n even numbers, right? Because n odd numbers are here, so you have n even numbers here, and each even number has 2 as common factors. So what you can do is basically 2 is basically 2 into 1, 4 is basically 2 into 2, 6 is basically 2 into 3, and similarly 2n is basically 2 into n. So all the n guys has 2 with each, right? And in the down you have n factorial. So you can say 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1. This is like n odd numbers.
का प्रोडक्ट, बट दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस natural number product, it's a basically odd, so you can separately write this way. And here what you can take 1 2 यहां से निकलेगा, एक 2 यहां से निकलेगा, एक 2 यहां से निकलेगा, एक 2 यहां से निकलेगा, तो ऐसे कितने 2s निकल जाएंगे, n 2s, ऐसे n 2s निकल जाएंगे। और n 2s 2 को अगर आप इट सेल्फ से n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बाहर आ जाएगा, 2 टू द पावर n। तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। नीचे क्या रह गया, n फैक्टोरियल। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। ये क्या है, ये है n फैक्टोरियल, और ये क्या है, n फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 2 टू द पावर n इंटू 1 इंटू 3 अप टू 2n माइनस 1। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। आई एम श्योर आप फिर से देखोगे तो इसको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, फिर से जल्दी से रिकैप करते हैं। 1 से लेके 2n तक सारे नेचुरल नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, n फैक्टोरियल को लिख दिया 1 से लेके n नेचुरल नंबर, जस्ट आई वांटेड टू शो यू, दैट इज व्हाई। फिर उसको वापस मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया, इट्स ओके। अब मैंने क्या किया, 1 3 5 जितने भी ऑड नंबर्स थे, इससे पहले कौन से ऑड नंबर थे, 2n माइनस 1, तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स को मैंने क्लब कर दिया यहाँ पे, राइट, दीज आर द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। उसी में n इवन नंबर्स थे, उसको मैंने क्लब कर दिया यहाँ पे, 2 इंटू 4 इंटू 6। ये बेसिकली कितने हैं, n इवन नंबर्स। ये कितने हैं, n ऑड नंबर्स। अब मैंने n ऑड नंबर्स को यहाँ पे रख दिया, और n इवन नंबर्स में 2 क्या है, 2 इंटू 1, 4 क्या है, 2 इंटू 2, 6 क्या है, 2 इंटू 3, n 2n क्या है, 2 इंटू n। अब सबके पास 2 2 है, तो सबके 2 2 अगर बाहर निकाल देंगे, सब मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएंगे, 2 टू द पावर n, और बाकी क्या बच जाएंगे, 1 2 3। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1 टू n। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n फैक्टोरियल। सो ये n फैक्टोरियल कट गया, सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद 2 टू द पावर n into, so you can say 2n factorial upon n factorial. So you can also say 2n factorial is perfectly divisible by n factorial, right? As you can say, you got a perfect integer when you divided these two guys. Let's go to the next problem. If n factorial upon n minus 2 factorial into 2 factorial, so this is like numerator and this is denominator. This is numerator and this is denominator. So you have two expression, n factorial upon n minus 2 factorial into 2 factorial and n factorial upon n minus 4 factorial are in the ratio 2:1. Then you have to find the value. So basically what it wants to say that n factorial upon n minus 2 factorial into 2 factorial is to n factorial upon n minus 4 factorial is to 4 factorial equals 2:1. This is the equation, this is the question problem, and we need to find the value of n. So what we are going to do, we are just going to simplify. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n factorial, नीचे क्या हो जाएगा n minus 2 factorial, ये क्या हो जाएगा 2 factorial. Since रेशो का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन मैंने छोड़ दिया, n factorial upon n minus 4 factorial into 4 factorial equals 2. 2 upon 1 is 2. Now what I can do, I'll just take n factorial upon n minus 2 factorial into 2 factorial. डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा. Now you are left with this equals 2, right? Now n factorial और ये n factorial कट जाएगा, right? So now you are just left with 4 factorial into n minus 4 factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial. Now n minus 2 factorial को आप विजुअलाइज करोगे तो आप क्या कह सकते हो, अगर मैं इसको लेट्स टेक डिफरेंट कलर ग्रीन, आपसे मैं बोलूं कि विजुअलाइज n minus 2 factorial. So n minus 2 factorial को आप क्या लिख सकते हो, n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 up to 1, right? This is what you can say. Now n minus 2 factorial को आप लिख सकते हो n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 up to 1. अब गौर से देखना, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है, लेट मी शो द कलर. ये देखो जो मैंने ऑरेंज में ब्रैकेट डाला है, n minus 4 into n minus 5 into n minus 6 up to 1. तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा n-4 फैक्टोरियल। तो मैं लिख सकता हूं ये इज इक्वल टू 2 है। लेट मी टेक द अनदर पेज। So I can write this whole story. I can take this thing up. So what I can do is 4 factorial into n-4 factorial. I'll leave this is as it is. This will be 2 factorial into n-2 into n-3 into n-4 factorial equals 2. Now what I can do, I can cross this with this, right? So we are just left with 4 factorial by 2 factorial into 1 by n-2 into n-3, which is 2. Now you know what is 4 factorial. 4 factorial can be written as 4 into 3 into 2. So 2 factorial is 2. So 2 से 2 कट गया. You are just left with, अगर मैं क्रॉस कर दूं तो ये इधर चला जाएगा. तो you are left with 4 into 3 equals 2 into n-2 into n-3, which makes it 6 is equal to n-2 into n-3. अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो. I'll just use black color, यहाँ पे मैं ला रहा हूँ. तो आप इसको लिख सकते हो n square minus 5n plus 6 equals 6, right? This is what you can say. Now 6 से ये 6 cancel, you are just left with n square minus 5n equals 0. So you can say n into n minus 5 equals 0. So n is either equal to 0 or n is equal to 5. Now since you know n minus 2 एक defined number है, तो n 0 नहीं हो सकता, क्योंकि n minus 2 और n minus 4 अगर defined है तो इसका मतलब है कि n has to be ग्रेटर देन 3 एट लीस्ट, क्योंकि 4 पे 0 फैक्टोरियल डिफाइन होता है. तो n हैज टू बी एट लीस्ट ग्रेटर देन 3. तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. द ओनली आंसर एक्सेप्टेबल इज 5. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 5. आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे क्या लिख सकते हो 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, उसको क्या लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल इज 2. वहां क्या लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल, n-4 क्या हो गया 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. आप जानते हो 5 फैक्टोरियल क्या होता है. 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2. और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2. आप देखो 3 इंटू 2 से ये कट जाएगा और ये जाएगा, ये बन गया 10. तो ये पार्ट क्या बन गया है 10. तो मैं इसको कह सकता हूँ 10. आप इसको देखो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. इससे ये कट गया तो क्या बन गया 10:5. What is 10:5? 2:1. I just showed the verification part. तो आई एम श्योर आप फैक्टोरियल को देख के आपको थोड़ा सा शुरू में डर लगेगा, बट आप एक बार दिमाग में रखोगे सारी प्रॉपर्टीज और बेसिक डेफिनेशन, तो उसके साथ एक थोड़ा सा आपको फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है. उसके बाद ये आसान हो जाता है. तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न हाउ यू आर डूइंग इट. तो थोड़ा सा स्लोली जाना है. पहली बार आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि पहली बार आप जब ड्राइव करते हो तो रैश ड्राइविंग नहीं करते हो. आप स्लोली सीखते हो, स्लोली गियर पे कमांड लेते हो, स्लोली क्लच पे कमांड लेते हो. तो धीरे धीरे करना है, राइट. नाउ बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, इफ यू रिमेंबर चैप्टर 2 में मैंने काफ़ी एक्सक्लूसिवली इसके बारे में बात की थी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो होती है, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. जैसा कि आप देख सकते हैं एडिशन प्रिंसिपल के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको. इफ यू रिमेंबर इन अ कबर्ड आई हैव 3 शॉर्ट स्लीव शर्ट्स. देखो मेरे पास दो हैं, एक कबर्ड का पोजीशन है जहां पे मेरे पास शॉर्ट स्लीव शर्ट्स हैं और दूसरा है आई हैव अ लॉन्ग स्लीव शर्ट्स. अब शॉर्ट स्लीव शर्ट्स भी हैं, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स भी हैं. शर्ट तो मैं एक ही पहनूंगा, या तो शॉर्ट स्लीव पहनूंगा या लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनूंगा. तो बताओ मेरे पास कितने चॉइस हैं शर्ट पहनने के. सो ईदर आई एम गोइंग टू वेयर लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव. सो आई कैन सी 3, 1 रेड half red t-shirt, then I see pink t-shirt, then I see blue t-shirt, then I see long sleeve pink shirt and long sleeve blue shirt. So I'm going to pick one of them. So how many choices do I have? So I can simply add them, 3 plus 2. So this is basically addition principle. So when the word something like either or comes, we say we are going to apply addition principle. You can also say when you have to see things in terms of cases, you say add. Okay, आप या तो लॉन्ग स्लीव शर्ट का केस पहनोगे या शर्ट स्लीव का. आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते. केसेस इज समथिंग जो इंडिपेंडेंटली की जाएगी, या तो ये करेंगे या तो वो करेंगे, राइट.
तो केसेस में आपको पता है कि केसेस में इधर यू आर गोइंग टू गो इनटू द समर लुक और यू आर गोइंग टू गो इनटू द फॉर्मल लुक. So whatever the choice you have, you are going to exercise one of the. So you can say the summer look is one case and the formal look is the other case. So whenever you see the things are in cases, when you see okay case 1, case 2, case 3, so you can add them up, or you see that the word either or has been exercised or used. So you can think of addition principle. Similarly for मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, यू हैव टू सी दैट आपने पहला कबर्ड खोला जहां पे आपको शर्ट्स दिखाई दिए, और आपने दूसरा कबर्ड खोला जहां पे आपको 3 ट्राउजर्स दिखाई दिए. एज यू कैन सी, आपको जब टॉप पहनना है, टॉप के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं? ईदर यू आर गोइंग टू वेयर लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव, बट टॉप पहनने के लिए आपके पास टोटल चॉइस कितने हैं? 5. और शॉर्ट्स और ट्राउजर्स पहनने के लिए आपके पास टोटल चॉइस क्या है? 3. तो बताइए अब आपके पास चॉइसेस कितने हैं? तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू ऐड, बिकॉज आपको शर्ट एंड ट्राउजर पहनना है. क्या पहनना है? शर्ट एंड ट्राउजर. ऐसा तो नहीं है कि या तो शर्ट पहनूंगा या तो ट्राउजर पहनूंगा, राइट? सलमान खान एक्सेप्शनल केस है जिसमें वो सिर्फ ट्राउजर पहनते हैं, कभी कभी शर्ट नहीं पहनते हैं. बट आप तो नॉर्मल इंसान है, हम लोग सब नॉर्मल इंसान है, हमें शर्ट और ट्राउजर दोनों पहनना है. तो कहानी क्या है? शर्ट एंड ट्राउजर. क्या है? शर्ट एंड ट्राउजर. तो जहां पे कहानी एंड पे आ जाती है वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं. आप देख सकते हो, मैं रेड शर्ट के साथ ये जीन्स भी पहन सकता हूँ, रेड शर्ट के साथ मैं ब्लू जीन्स भी पहन सकता हूँ, रेड शर्ट के साथ मैं ब्लैक जीन्स भी पहन सकता हूँ. तो रेड शर्ट के साथ मैंने कितनी कॉम्बिनेशन ट्राई कर ली? 3. सिमिलरली मैं पिंक शर्ट के साथ भी ग्रीन जीन्स पहन सकता हूँ, पिंक शर्ट के साथ भी मैं ब्लू ट्राउजर पहन सकता हूँ, पिंक के साथ भी मैं ब्लैक ट्राउजर पहन सकता हूँ. सिमिलरली मैं ब्लू के साथ भी 3 चॉइसेस है मेरे पास, राइट? देख रहे हो? तो हर टॉप के साथ मेरे पास 3 चॉइसेस हैं. तो टोटल कितने टॉप्स हैं? 5. तो 5 into 3, सो यू जस्ट मल्टीप्लाइड देम. तो जब कहानी एंड में होती है या स्टेजेस में होती है, व्हाट यू डू? यू मल्टीप्लाई. सो व्हेनेवर यू डू द क्वेश्चन ऑफ counting, always see the thing is asked in the which category they fall in, whether it is falling in addition principle or it is falling in multiplication principle. And how you are going to categorize it? You just have to see the story is in cases or in stages. या the word जो the most logical word which you are using is and or. ईदर और आप ज्यादा यूज कर रहे हो या एंड यूज कर रहे हो? एंड में मतलब दोनों स्टेप होना है. तो स्टेजेस में जब चीजें होती हैं आप मल्टीप्लाई करते हो. अब अगर आपको अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में हमने इसकी बहुत ही डिटेल में बात की थी. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू, दोज हु हैवंट वॉच्ड इट, प्लीज गो एंड वॉच चैप्टर 2 ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज there are 15 gates. See, whenever you are solving questions of combinatorics or permutation and combination, you need to know that the question is hidden in the intention of the making question. एग्जामिनर किस इंटेंशन से क्वेश्चन बनाया है वो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के. लैंग्वेज ट्रिकी हो सकती है, यू नीड टू नो कि लैंग्वेज को कैसे डिकोड करना है. जैसा कि आपको मैंने कहा कि एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी लैंग्वेज की स्टोरी है, कि वो केसेस है या स्टेजेस है, क्या वो और वर्ड यूज कर रहा है, क्या वो एंड वर्ड यूज कर रहा है. सो दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. नाउ इफ यू लुक, देयर आर 15 गेट्स टू एंटर अ सिटी फ्रॉम नॉर्थ एंड 10 गेट्स टू एंटर द सिटी फ्रॉम ईस्ट. सो लेट्स इमेजिन द सिटी. सो I'll show city something like this. So let's say this is my city, right? Now I can see this is north and I see 15 gateways. I see 15 gates to approach north. And what I can see is east is somewhere here. I see 10 gates here, 10 gates here and 15 gates here. In how many ways a person can enter the city? अब आपको सिटी के अंदर जाना है तो you have 2 choices. Either you are going to go by north or east. आप नॉर्थ के बीच में जाएंगे या ईस्ट में जाएंगे, तो और वर्ड आ गया है. और नॉर्थ पे आपके पास कितने चॉइसेस है? 15. ईस्ट में आपके पास कितने चॉइसेस है? 10. और को आप डिकोड कैसे करते हैं? 10 प्लस से. तो 15 प्लस 10 क्या है? आपके पास 25 चॉइसेस हैं टू एंटर. बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास 15 लॉन्ग स्लीव और 10 शॉर्ट स्लीव हैं, तो आप कितने तरीके से शर्ट पहन सकते हो? ईदर लॉन्ग स्लीव, आप 15 गेट से तो नहीं घुस सकते हो, आप 10 गेट से तो नहीं घुस सकते हो, आप ईस्ट और नॉर्थ दोनों से एक साथ तो नहीं घुस सकते हो. सो यू हैव टू चूज. दैट इज व्हाई द वर्ड और इज कमिंग. दैट इज व्हाई यू हैव टू कंसीडर द स्टोरी ऑफ केसेस. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 25. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 10 आर बॉयज एंड 5 गर्ल्स। तो आपकी क्लास में मान लीजिए 15 बच्चे हैं, सो यू हैव अ 15 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, राइट। एंड इस 15 बच्चों में 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। सैडली हमेशा ज़्यादातर यही देखा जाता है कि लड़कियों की क्वांटिटी कम है, बट इट्स नॉट अ वेरी जनरल केस, उल्टा भी हो सकता है। There are 15 students in a class in which 10 are boys and 5 are girls. The class teacher selects either a boy or a girl for monitor of the class. Of course, the class teacher can choose a girl also or a boy also. ऐसा तो कुछ discrimination नहीं है ना कि monitor has to be a boy or monitor has to be a girl. In how many ways the class teacher can make this selection? आप बताइए, क्लास टीचर के पास कितने choices हैं? 10 लड़के हैं, 5 लड़के हैं। अब इसमें आपको वो सब दिमाग नहीं लगाना है कि 5 लड़के तो बदमाश हैं, उनको तो कभी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। नो, यू आर हैव टू बी वेरी न्यूट्रल व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको इमेजिन करना है 10 लड़के बैठे हैं और 5 लड़कियां बैठी हैं, तो वो किसी को भी चुन सकती हैं। तो ईदर बॉय, ही विल चूज ईदर बॉय और गर्ल, यही दो चॉइस है उनके पास, या तो लड़का चुनेंगे या लड़की चुनेंगे। और जब लड़कों में देखते हैं तो कितने चॉइस है उनके पास? 10। और जब लड़की को चुनेंगे तो कितने चॉइसेस है? 5। और का मतलब क्या है? प्लस। सो कितने चॉइसेस है मैम के पास? मैम के पास 15 चॉइसेस हैं टू सेलेक्ट अ मॉनिटर। अगर 50 बच्चे होते तो 50 चॉइस होती, क्योंकि मॉनिटर तो कोई भी बन सकता है। इसने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया है कि भैया क्लास का जो सबसे टॉपर है वो मॉनिटर बनेगा, या क्लास में जिसने मैथमेटिक्स में हाईएस्ट स्कोर किए हैं वो टॉपर बनेगा, या जो सबसे वेल बिहेव्ड है टीचर के अकॉर्डिंग वो बनेगा। इसमें कोई नहीं होगी, एनीवन कैन बिकम। सो ही शी द क्लास टीचर हैज 15 choices to exercise. Find a number of two-digit number having different digits which are divisible by 5. Now आपको 2-digit number बताने हैं जो divisible by 5 हैं, और दूसरा कि they have to be different। मतलब जैसे कि 55 आप नहीं कह सकते हैं कि 55 is a number जो आप कहेंगे कि 55 is definitely divisible by 5, but they both the digits are same. So find the number of two-digit number having different digit which are divisible by 5. आपको divisibility टेस्ट याद करना पड़ेगा। आपको बताइए divisibility टेस्ट ऑफ 5 क्या होता है? divisibility टेस्ट ऑफ 5 क्या होता है? आप लोग अगर याद हो तो बताइए। divisibility टेस्ट ऑफ 5 होता है लास्ट डिजिट शुड बी ईदर 0 और 5। लास्ट डिजिट शुड बी ईदर, और आपके पास कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। 2 डिजिट नंबर है तो 2 बॉक्स हैं। लेट से आपने 2 कहानी ड्रॉ कर दी, एक नंबर एंडिंग विथ 0 और दूसरा नंबर एंडिंग विथ 5। नंबर एंडिंग विथ 0 और नंबर एंडिंग विथ 5, आपने 2 केस ले लिया। और इधर द नंबर इज एंड डिजिट इज 0 या एंड डिजिट इज 5। तो डेफिनेटली ये सारे 2 डिजिट नंबर जो एंड करने हैं 0 से या 5 से वो डिविजिबल होंगे 5 से। बट एट द सेम टाइम आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि नंबर रिपीट नहीं करें, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो डेफिनेटली व्हेन यू लुक इनटू फिलिंग ऑन दिस स्पेस, द टेंस प्लेस, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कोई भी नंबर एक पिक करके यहाँ पे डाल सकते हो, 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे कितने चॉइस हो गए आपके पास? 9 चॉइस हो गए, राइट। 00 तो नहीं ले सकते क्योंकि 00 वोंट बी क्वालिफाइड एज 2 डिजिट नंबर। एट द सेम टाइम आप 100 भी नहीं ले सकते हो क्योंकि दैट विल आल्सो नॉट क्वालिफाई एज 2 डिजिट नंबर। तो आपने कहा कि जो नंबर 0 से एंड हो रहा है वो कितने हैं? तो 10 20 30 40 50। तो आपने बेसिकली इस बॉक्स को कितने ऑप्शन से भर दिया? आपके पास कितने चॉइसेस थे? यू कैन टेक एनी वन। तो आपके पास 9 चॉइसेस थे। और का मतलब आपको पता है प्लस होता है। और का मतलब क्या होता है? प्लस, क्योंकि आपने केसेस में स्टोरी डिवाइड कर रखी है। अब जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 नहीं ले सकता क्योंकि 0 डालने से क्या हो जाएगा? 0 डालने से क्या हो जाएगा? सिंगल डिजिट बन जाएगा। सिंगल डिजिट नहीं चाहिए। उल्टा मैं 5 भी नहीं डाल सकता हूँ। 5 मैं क्यों नहीं डाल सकता? कोई बच्चा बताओ। आई एम श्योर आपको पता है 5 हम क्यों नहीं डाल सकते। 5 हम इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि 5 जैसे डालेंगे हैविंग डिफरेंट डिजिट का उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैविंग डिफरेंट डिजिट का उल्लंघन हो जाएगा। तो हम उसको नहीं डालेंगे, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 1 1 2 3 4 6 7 8 9। तो 4 इधर 4 इधर, कितने चॉइस हो गए? 8 चॉइसेस। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? 17। आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स कौन होंगे। अगर आप फिंगर पे काउंट करेंगे तो लेट्स काउंट बाय द फिंगर। 10 15 20। तो ऐसे अगर आप देखें तो क्या होगा? 10 15 20 25 30 35 40 45 50। 55 को हम छोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम्ड है। तो आप क्या कहोगे? 60 65 70 75 80 85। मैं बस दिखा रहा हूं, बार बार ऐसे नहीं करेंगे, राइट।
तो देखो कितना हो गया, लेट्स स्ट्राइक इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So we got our answer as 17, right? Let's go to the next question. A hall has 3 gates. In how many ways a man can enter a hall through one gate and come out through a different gate? Okay, so let me first draw a hall for you. So let's say this is my hall, and let's say I have one red gate, then you have one green gate, and then you have one pink gate, right? So you have 3 gates. A hall has 3 gates. In how many ways a man can enter through one gate and come out through a different gate? तो आप अगर गेट ए से जाओगे, अगर आप रेड गेट से जाओगे तो आप रेड गेट से बाहर नहीं आ सकते। किससे बाहर आना है आपको? या तो ग्रीन से आएंगे या तो पिंक से आएंगे। अगर आप ग्रीन से जाओगे तो आप ग्रीन से बाहर नहीं आ सकते, या तो रेड से जाओगे या तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि ये कहानी में आप पहले एंटर करोगे एंड बाहर जाओगे, मतलब एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट क्या है मतलब? एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एंट्री एंड एग्जिट, ऐसा तो नहीं ना एंट्री और एग्जिट, ऐसा भी नहीं है कि आप एंटर करके रह सकते हो, ऐसा भी नहीं है बिना एंटर के एग्जिट कर सकते हो। तो एंट्री एंड एग्जिट, तो ये दोनों स्टेजेस हैं। एंट्री पे क्या कितने चॉइसेस हैं आपके पास? आपके पास रेड गेट है, ग्रीन गेट है, पिंक गेट, आप किसी भी पिंक गेट से घुस सकते हो, तो आपके पास 3 चॉइसेस है। और एग्जिट के लिए कितने चॉइसेस हैं? एग्जिट के लिए 3 चॉइसेस नहीं है, एग्जिट के लिए कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस, क्योंकि अगर आप रेड गेट से घुसे हैं तो आप रेड गेट से बाहर नहीं आ सकते, अगर आप पिंक गेट से घुसे हैं तो आप पिंक गेट से बाहर नहीं आ सकते, अगर आप ग्रीन गेट से एंटर किए हैं तो ग्रीन गेट से बाहर नहीं आ सकते। तो कितने चॉइस हैं आपके पास? 2 चॉइसेस हैं। तो 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। आप काउंट भी कर सकते हो, लेट्स कॉल दिस एज रेड, ग्रीन, पिंक। ये आपकी पहली क्लास है इसलिए मैं काउंट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मान लीजिए एक हो गया रेड ग्रीन, एक हो गया रेड पिंक, दूसरा हो गया ग्रीन रेड, दूसरा हो गया पिंक रेड, एक हो गया पिंक ग्रीन और दूसरा हो गया ग्रीन पिंक। पहला लेटर एंट्री एग्जिट डिफाइन करता है, दूसरा लेटर एग्जिट डिफाइन करता है। तो टोटल केसेस कितने हुए? 6, जो कि अभी हमने काउंट भी किया है। बट इट्स ऑफ कोर्स आपको पता चल रहा होगा कि मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑन फिंगर्स एवरी टाइम। छोटे नंबर को हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ लार्जर फिनाइट नंबर्स तो हमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। There are 3 routes to travel from city A to city B, and 4 routes to travel from city B to city C, and 7 routes to travel from city C to D. In how many different routes a man can travel from city A to city D via city B and city C? मतलब आप देखो, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो लेट्स से मैं सर्कल से सिटीज दिखाऊंगा। लेट्स से दिस इज सिटी ए, लेट्स से दिस इज सिटी बी, let's say this is city C, let's say this is city D. Okay, so you have 4, sorry, so you have basically 4 cities if you look here, and let me change the this, हमने shapes कर दिया। So this is city A, this is city A, this is city B, this is city C, and this is city D. Now they say there are 3 routes to travel from city A to B. तो A से B जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो आपको 3 रूट्स देख रहे हैं। B से C जाने के लिए कितने रूट्स हैं? सिटी A टू सिटी B, एंड 4 रूट्स टू ट्रेवल सिटी B टू सिटी C। 4 रूट्स कौन के हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आपने 4 तरीके से B से C एंट्री मार ली, वेरी गुड। उसके बाद 7 रूट्स फ्रॉम सिटी C टू D, कितने हैं? 7 रूट्स फ्रॉम सिटी। अब 7 रूट्स हैं, लेट्स मी चेक द डिफरेंट कलर सो दैट यू डोंट। तो 7 रूट्स क्या हो गए? रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7। सो आपको ये दिख रहा है कि आप अगर गाड़ी लेके जाते हो
तो ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं, बी से सी जाने के लिए 4 रास्ते हैं और सी से डी जाने के लिए 7 रास्ते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप ए से डी जाओगे कैसे, ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी। क्या वर्ड आ रहा है, एंड, ए टू बी एंड ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी, राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आपको सारे सिटीज होके ही जाना है, कोई डायरेक्ट रूट आपको बताया नहीं जा रहा है। अब ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, 3, बी से सी जाने के लिए कितने चॉइसेस है, 4, और सी से डी जाने के लिए कितने चॉइसेस हैं, 7। मैंने ये एग्जाम्पल आपको परम्यूटेशन चैप्टर 2 में भी बताया था। अगर आप लोग थोड़े और सिंप्लीफाइड केसेस मैंने लिए थे तो आप बता सकते हैं आप कितने तरीके से जा सकते हो। 3 इंटू 4 इंटू 7 दैट इज 84। मैं आपको ये 84 शो नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली ए से सी का 12 रास्ता दिखा सकता हूँ। देखो कैसे, एक रास्ता देखिए ये हो सकता है, देखिए मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। मान लीजिए आपकी जो गोल्डन कलर है वो आपकी कार की कलर है, तो आप एक रास्ता ये ट्रैवल कर सकते हो 1, एक रास्ता ये ट्रैवल कर सकते हो 2, एक रास्ता ये ट्रैवल कर सकते हो 3, एक रास्ता ये ट्रैवल कर सकते हो 4। सिमिलरली आप एक रास्ता ये कर सकते हो 5, 6, 7, 8। हॉच पॉच हो रहा है, डोंट वरी। उसी तरीके यहां से भी आप 4 रास्ते निकाल लोगे तो 12। तो आपने देखा ए से सी जाने के लिए क्या हो गया, 3 इंटू 4 दैट इज 12, और फिर उसके बाद 7 रास्ते और निकल के आ रहे हैं, तो 12 इंटू 7 दैट इज 84। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ सिटी हैज 12 गेट्स। In how many ways can a person enter city through one gate and come out through a different gate? देखिए ये जो आपने अभी 2 सवाल कर चुके, एक हॉल वाला किया था जिसमें 3 गेट्स थे, उसमें आपने एक की एंट्री की थी और बाहर दूसरी लिया था। अब क्या है, अब क्वेश्चन सेम ही है। देखो क्वेश्चन का सेटअप सेम ही है, बट हम इस बार हमने क्या कर दिया, हमने कह दिया कि सिटी हैज 12 गेट्स। कितने गेट्स हैं, 12 गेट्स के लिए। तो लेट्स मेक इट अ हेक्सागोनल सिटी, है ना। तो एक हेक्सागोनल सिटी बना देते हैं। Sorry, I forgot. So let's say this is your hexagonal city, और इसको एंट्री करने के लिए कितने रास्ते हैं, 12 गेट्स हैं। तो 12 गेट्स के लेट्स से एक गेट ये है, 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 एक गेट ये है। तो आपको 6 गेट कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं और 6 गेट्स सेंटर पे दिख रहे हैं, है ना। तो टोटल आपको 12 गेट्स दिख रहे हैं। इन हाउ, बार बार ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके विजुअल के लिए बता रहे हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको एंट्री करने के लिए आपके पास कितना चाहिए, फिर से क्या कहानी है, एंट्री एंड एग्जिट की। किसकी कहानी है, एंट्री एंड एग्जिट। यहां पे क्या वर्ड है, एंड, कैपिटल में लिख लो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, एंड, एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री करने के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं, एंट्री करने के लिए आपके पास 12 चॉइसेस हैं। एग्जिट मारने के लिए आपके पास कितना चॉइसेस हैं, आपको डिफरेंट गेट से एग्जिट मारना है, तो कितने चॉइसेस हैं, 11। एंड का मतलब क्या होता है, अब 12 इंटू 11 क्या होता है, 132। उस समय तो मैंने आपको 6 काउंट करके दिखा दिया था, बट 132 काउंट करके उंगली पे दिखाना मुश्किल होगा, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को ट्राई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो आप काउंट करके उंगली पे 132 देख लीजिए, आपको आ जाएगा। आप सब गेट का नाम लिख दो, ABCDEFG, तो आप देख सकते हो कि ए के साथ बी गया, ए के साथ सी गया, ऐसे करके आप पूरे कॉम्बिनेशन बनाओगे, दैट विल टर्न आउट टू बी 132 ओनली। नाउ कमिंग टू द नाइन्थ प्रॉब्लम। नाइन्थ प्रॉब्लम में दे रखा है एक सेट है जिसमें ABCD अप टू Z, मतलब सारे इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश लेटर्स आप जानते हैं, ये इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, आपको पता है। इंग्लिश अल्फाबेट एक कलेक्शन को कहते हैं जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। नॉर्मली मैं हमेशा देखता हूँ बच्चे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं, नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट है जिसके 26 लेटर्स हैं, वो फैमिली को अल्फाबेट कहते हैं। आप ये बात, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, नहीं, 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट सेट का नाम है, कलेक्शन का नाम है ना। बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको यूजुअली सही भी कहने लग जाते हैं। वो एक होती नहीं, कोई चीज हम लगातार कहने लगते हैं तो सही हो जाती है, बट एट द सेम टाइम द रियल ओरिजिन इज दैट्स इंग्लिश अल्फाबेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 26 लेटर्स, दैट इज ABCDEFGH up to Z, right?
Find the number of 5-letter word that can be formed from the element of set S such that the first and the last letters are distinct vowels and the remaining 3 are distinct consonant. अब आपको 5 लेटर वर्ड बनाने हैं, है ना? 5 लेटर वर्ड, ये जो आपके 5 लेटर वर्ड हैं, तो मैंने ये देखिए फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको कलर कर देते हैं ब्लैक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अंग्रेजी का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। आई एम श्योर आपको पता होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या है। वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर्स होते हैं इसे हम वॉवेल कहते हैं। बाकी सारे 21 लेटर्स जो रिमेनिंग है उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। सेमी वॉवेल भी एक वर्ड होता है, मतलब एक कलेक्शन होता है, जैसे डब्ल्यू एंड वाई को हम क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल। ये सब जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन होती है। हम अंग्रेजी क्लास है नहीं कि मैं इसको समझाऊं। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको क्या बनाना है? नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स। अब ये देखो, आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हो तो आप जब 5 लेटर वर्ड कहते हो तो आपको ये नहीं देखना होता कि वो 5 लेटर वर्ड मीनिंगफुल है कि नहीं। अगर मैं बोलूं एक्स वाई जेड ए बी, क्या ये 5 लेटर वर्ड है? तो आप बोलोगे यस इट इज अ 5 लेटर वर्ड। इसका मीनिंग कुछ है या नहीं है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, क्योंकि आप डिक्शनरी लेके बैठोगे तो नहीं कि काउंट करोगे कि कौन सा मीनिंगफुल है कौन सा मीनिंगफुल नहीं है। बहुत बार तो आपको पता भी नहीं होता बहुत सारे वर्ड्स। तो व्हाट दे एक्सपेक्ट इज जस्ट कि भैया आपको वो 5 लेटर के वर्ड बना दो, कोई भी वर्ड, चाहे वो जिस भी भाषा में दिखे, जिस भी भाषा का लगे या बेमायने वर्ड हो। ओके, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स। तो मैंने 5 स्पेसेस दिए हैं जहां पे हमें लेटर्स डालने हैं। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ सेट एस। एस इज बेसिकली द इंग्लिश अल्फाबेट जिसमें आपके पास 26 लेटर हैं। सच दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स, फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर हैज टू बी वॉवेल। ये क्या होना चाहिए? वॉवेल। ये क्या होना चाहिए? वॉवेल। और ये क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। लेकिन आप गौर से देखोगे क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट वॉवेल्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे ए लिखा हूं तो यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ई लिखा है तो यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने आई लिखा है तो यहाँ पे आई नहीं आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ओ लिखा है तो यहाँ पे ओ नहीं आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे यू लिखा है तो यहाँ पे यू नहीं आना चाहिए। डिस्टिंक्ट। सिमिलरली कॉन्सोनेंट्स के लिए भी यहाँ पे क्या है? डिस्टिंक्ट। तो सिमिलरली आपको देख रहे हो कि आपके पास 5 स्पेसेस हैं और हर स्पेसेस में आपको चॉइसेस डालने हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूं कि ए, ई, आई, ओ, यू में फर्स्ट ब्लैंक को भरने के लिए मेरे पास कितने स्पेसेस हैं? मेरे पास 5 चॉइसेस है। कितने चॉइसेस हैं? 5। अगर मैंने इसमें से एक चीज को इसमें यहां डाल दिया तो यहां पे फिल करने के लिए मेरे पास कितने चॉइस होंगे? 4, क्योंकि एक मैंने वहां पे यूज कर लिया। वो कोई भी हो सकता है, तो मैंने इसको लिख दिया 5 × 4। सिमिलरली आपके पास 21 लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट हैं। आपको यहां पे भरने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 21। यहां पे 20, यहां पे 19, राइट। इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 21। जैसे ही आपने यहाँ पे फिलअप किया, इसके पास कितने चॉइस बचेंगे? 20। और इसके पास कितने चॉइसेस बचेंगे? 19। सिंस आप ये सारे काम स्टेजेस में कर रहे हो, किसमें कर रहे हो? स्टेजेस में। मतलब एक डब्बे में नंबर डाला, लेटर डाला, दूसरे डब्बे में लेटर डाला, तीसरे डब्बे में लेटर डाला, तो आप क्या कर रहे हो? एंड कंडीशन कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे डब्बे में लेटर डाल के तीसरे डब्बे में लेटर नहीं डालना है। यू हैव टू, क्योंकि आपको 5 लेटर वर्ड बनाने ही हैं। तो आप क्या हो गया? 5 × 21 × 20 × 19 × 4। So the final answer is going to be 5 × 21 × 20 × 19 × 4. This is the total number of distinct word. इसको कैलकुलेशन करने के लिए 5 × 4 क्या होता है? 20. So 20 × 21 × 20 × 19. 20 × 20 क्या होता है? 400. 400 × 21 × 19. आप देख सकते हो 21 और 19 क्या होता है? 20 + 1 और 20 - 1. तो दैट इज बिकम, देखिए 21 क्या होता है? 20 + 1 और 19 क्या होता है? 20 - 1. a + b का होल स्क्वायर × a - b का होल स्क्वायर क्या हो गया? 20² - 1 स्क्वायर, दैट इज 399। तो आप लिख सकते हो 400 × 399। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। 399 × 4 को आप ये लिख सकते हो कि 400 × 400 - 1। 400 आप, तो आपको पता है कि 399 × 4 क्या होता है? 4 × 400 - 4। तो आप उसको लिख सकते हो 1596, बाद में डबल जीरो डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी इजी कैलकुलेशन करने के लिए।
तो फाइनल आंसर यही है जो विच इज गोइंग टू बी 159600। आप ऐसे भी देख सकते हो 399 को डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 798, और 798 को डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 1596, और 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्विक कर सकते हो, वट एवर सूट्स यू, राइट। Going to the 10th problem. 10th problem says a binary sequence consists of zeros और one। आपको पता है बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स जो नॉर्मली ऑपरेट करते हैं वो बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं। बाइनरी नंबर का मतलब होता है यस और नो। बाइनरी नंबर ऑपरेट करता है यस और नो प्रिंसिपल पे, ओपन और क्लोज के प्रिंसिपल पे। यस का मतलब होता है 1, नो का मतलब होता है 0, या ओपन क्लोज। इस तरीके से आप इसको बाइनरी नंबर को देखते हो। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर 1 से लेकर 9 तक नहीं जानता है, कंप्यूटर 0 से लेकर 9 तक नहीं जानता है। हम लोग जो हिंदू अरबिक पढ़ते हैं जहाँ पे हम 0 से 9 तक जानते हैं, उसके बाद हम प्लेस चेंज करते हैं, बट कंप्यूटर 0 और 1 से काम करता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी सीक्वेंस हैविंग n टर्म्स। तो अब क्या हो रहा है कि अब आपके पास n ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। कितने ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, n ब्लॉक्स, 1 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, अप टू कितने ब्लॉक्स, n ब्लॉक्स। आपके पास टोटल n डब्बे पड़े हैं, n बॉक्सेस पड़े हैं, और हर बॉक्स में आपको क्या डालना है, आपको बाइनरी डिजिट्स डालने हैं। अब बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, 0 या 1। यहाँ पे 0 या 1, यहाँ पे 0 या 1। तो हर बॉक्स में आपके पास कितने चॉइसेस हैं, हर बॉक्स में आपके पास 2 चॉइसेस हैं। कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। हर बॉक्स में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप 0 डालेंगे या तो 1 डालेंगे। हर बॉक्स में आपके पास कितने चॉइसेस, 0। एट द सेम टाइम आपको n टर्म्स के सीक्वेंस कंप्लीट करना है, तो ये कंडीशन एंड में आ रहा है, फर्स्ट बॉक्स एंड सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स एंड nth बॉक्स। तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे कितने 2's मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n 2's मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 अगर n टाइम्स इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होता है, 2 to the power n। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू से। देखो एक सवाल एकदम इससे मिलता जुलता मैं कह देता हूं। लेट्स से अगर आपसे कोई पूछता है, चलो n से बात नहीं करता हूं, तो n से बच्चे थोड़े घबराने लगते हैं। लेट्स से आपको एक आपके रूम में, लेट्स से आपके रूम में लेट्स से 5 बल्ब्स हैं। कितने बल्ब्स हैं, 5 बल्ब्स। आपके रूम में 5 ट्यूबलाइट्स बल्ब्स हैं लेट्स से, ठीक है। 5 लैंप्स पड़े हुए हैं आपके रूम में। यही 5 लैंप्स आपके रूम को लिट करते हैं। अब आप से पूछा जा रहा है कि आपको अपने रूम को में रोशनी रखनी है, मतलब आपको अपने रूम में कंप्लीट अंधेरा नहीं रखना है। तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं, आप लैंप ए, लैंप बी, लैंप सी, लैंप डी, लैंप ई। तो लैंप ए के पास आपके पास कितना चॉइस है, या तो लैंप ए को आप बंद रखेंगे या ओपन रखेंगे। तो लैंप ए के पास आपके पास 2 चॉइसेस है, लैंप बी के पास भी 2 चॉइसेस है, लैंप सी के पास भी 2 चॉइसेस है, लैंप डी के पास भी 2 चॉइसेस है, लैंप ई के पास भी चॉइसेस है। मतलब हर लैंप के पास या तो आप उसको ऑन रखेंगे या ऑफ रखेंगे। तो टोटल आपके पास चॉइसेस कितने हैं, टोटल आपके पास 2 to the power 5 चॉइसेस हैं। कितने चॉइसेस है, 32। लेकिन आपको लाइट रखना ही रखना है, तो आप एक ऐसा केस, मतलब मिनिमम एक लाइट तो ऑन करना ही होगा। तो आपने जैसे कहा, इसमें क्या केस आ गई, इसमें ये भी केस आ गई कि आपने अपने सारे लैंप को ऑफ रखा है। दैट इज वन केस कि आपने ए बी सी डी ई साइमल्टेनियसली सबको ऑफ रखा है, तो आपको वो इंक्लूड कर लिया, तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 - 1। या आप ऐसे 2 लैंप के साथ देखो कि आपके पास 2 लैंप है, लैंप ए, लैंप बी। तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको अपना रूम लिट करना है तो आपके पास चॉइस है 2 to square -1, तो 3। कैसे, देखिए ये लैंप ए है, लैंप बी है, ए बी, ए ओपन बी ओपन, ए क्लोज बी ओपन, ए ओपन बी क्लोज, दोनों क्लोज। दोनों क्लोज में क्या हो जाएगा, अंधेरा, डार्कनेस। और इन तीनों केसेस में क्या होगा, लिट। तो आप कह सकते हो कि आपको एक सबट्रैक्ट करना है। सिमिलरली आपके पास 3 बल्ब होगा तो आप सिमिलरली कहोगे 2 to the power 3 - 1। और वैसे ही अगर आपके पास 5 होगा तो आप लिखोगे 2 to the power 5 - 1। अगर आपके पास n होगा तो आप लिखोगे 2 to the power n - 1। आई होप आपको ये समझ में आया है। नाउ कमिंग टू द 11th प्रॉब्लम, हाउ मेनी 3 digit number can be formed using 1 2 3 7 9 without any repetition of digits। तो आपके पास 2 सवाल है, 5 डिजिट और 3 डिजिट। पहले 5 डिजिट कर लेते हैं, पहला ऑप्शन। 5 डिजिट में आपको पता है कि बॉक्स बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो आपके पास आ गए ये 5 डिजिट नंबर, जहां पे आपको 5 डिजिट फिलअप करना है। और आपके पास नंबर्स कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 7 9। आपके पास 5 चॉइसेस हैं पहले बॉक्स के लिए। इसके लिए कितने चॉइसेस हैं, 5। आप किसी को भी रख दें।
एट द सेम टाइम क्या लिखा हुआ है, विदाउट एनी रिपीटेशन, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। तो फिर इसके पास कितने चॉइस होंगे, 4, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, सब कंडीशन में तो सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली 5 फैक्टोरियल, क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, विच इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज गोइंग टू बी 120, राइट, ये आपको पता है। अब दूसरा सवाल है 3 डिजिट के लिए। 3 डिजिट के लिए आपको क्या करना होगा, 3 डिजिट के लिए आपको 3 बॉक्स लेने होंगे। आपने 3 बॉक्स ले लिया, राइट। अब 3 बॉक्सेस में आपको फिर से इसी डिजिट्स को यूज करना है। तो पहले बॉक्स में आप 5 चॉइस हैं, दूसरे बॉक्स में 4 चॉइसेस है, तीसरे बॉक्स में 3 चॉइसेस हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितने डिजिट्स आप बना लोगे, आप बना लोगे 60 डिजिट्स, 60 नंबर्स बना लोगे जो 3 डिजिट्स के डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे, जो रिपीट नहीं करोगे। व्हाट यूजिंग दीज 5 नंबर्स, राइट। तो इस तरह के टाइप की प्रॉब्लम में आपको पेशेंस नहीं खोना है, आपको बस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ध्यान में रखना है। 12th, how many letters can be formed using A, B, C, D, E if repetition is not allowed? Repetition is allowed. ये क्वेश्चन मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको मैं बस अप्रोच बता देता हूँ। आपके पास क्या है, 3 लेटर वर्ड्स हैं। कितने लेटर वर्ड्स हैं, 3 लेटर वर्ड्स। तो आप ये 3 बॉक्स ले आए हो और आपके पास लेटर्स कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E, आपके पास 5 लेटर्स हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन का अलाउड का नहीं मतलब इसके पास आपके पास 5 चॉइस होगा, 4 चॉइस होगा, 3 चॉइस होगा। तो फर्स्ट का तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरा पार्ट देखूं, दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिपीटेशन इज अलाउड। तो मतलब आप ए भी लिखोगे तो कंसिडर किया जाएगा, ए बी लिखोगे तो कंसिडर किया जाएगा, ए सी भी लिखोगे तो कंसिडर किया जाएगा। मतलब क्या है कि आपको रिपीटेशन अलाउड है। तो इसके पास कितने चॉइसेस, इसके पास 5 चॉइसेस, इसके पास कितने चॉइसेस, इसके पास 5 चॉइसेस, इसके पास कितने चॉइसेस, 5 चॉइसेस। तो आंसर क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 क्यूब। ये दोनों सवाल हैं। अब आपके जो असाइनमेंट होंगे, मैं कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं दूंगा आपको। ये 15 सवाल जो है, अच्छा आई थिंक 15 सवाल हमने डिस्कस किया है, 15 सवाल है टोटल। तो वो 15 सवाल को आपको सॉल्व करना है। 13 देखिए क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। तो टोटल आपको 6 डिजिट्स दे रखे हैं और विदाउट रिपीटेशन आपको 4। तो यहां पे देखो क्या है, 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, 4 डिजिट नंबर बनाना है। फोर डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको यह पता है कि जो इसका 1000th डिजिट होगा, यहां पे आप जीरो नहीं डाल सकते। यहां पे आप क्या नहीं डाल सकते, जीरो नहीं डाल सकते। आपको इतना पता होगा क्योंकि यहां पे जीरो डालते ही ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। और क्या है, विदाउट रिपीटेशन। तो इस प्लेस को, जैसे ये 1s प्लेस हो गया, ये 10s प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये 1000 प्लेस हो गया, तो 1000 प्लेस में आप जीरो नहीं डाल सकते हो। तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं, आपके पास हैं 5 चॉइसेस। तो यहां पे आपने डाल दिया 5। कितने चॉइस डाले, 5। 100 प्लेसेस पे आप जीरो डाल सकते हो, ऑफ कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से आपके पास जीरो भी ऐड हो गया और यहां से 4, तो टोटल आपको 100 प्लेस के लिए चॉइस मिल गया 5। अब गौर से देखो, आप 1000 प्लेस पे जीरो नहीं डाल सकते, तो आपके पास 1 से लेके 5 तक 5 चॉइसेस थे, आपने यहां पे फिल कर दिया। 100 प्लेस पे भी आपके पास 5 चॉइसेस है, क्योंकि यहां 1 2 से लेके 5 तक आपके पास 4 चॉइस अभी बचे हैं, क्योंकि आपने एक चॉइस इसमें एक्सरसाइज किया है। और आप जीरो भी डाल सकते हो कि 4th डिजिट पे, 2nd प्लेस पे, 3rd प्लेस पे और 4th प्लेस पे जीरो हो सकता है, बस 1000 प्लेस पे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 1000 प्लेस पे जीरो डालेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कितने चॉइस थे, 5। 10th प्लेस के लिए अब आपके पास कितने चॉइस है, 10th प्लेस के लिए आपके पास अब 4 चॉइस है। और 1st प्लेस के लिए आपके पास कितने चॉइसेस, 3। क्योंकि आप देखो, अब फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 कोई भी ले सकते थे, इसमें से आपने एक पिक कर लिया। 100 प्लेस के लिए आप 0 1 2 3 4 5 में से एक कोई जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया, तो आपके पास बचा क्या, ओनली 5 चॉइसेस। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे 0 1 2 3 4 5 में आप देख लोगे, आप 2 लेटर्स यूज कर चुके हो, 2 डिजिट्स यूज कर चुके हो, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास 4 बचा। सिमिलरली 0 1 2 3 4 5 में आपने 3 डिजिट्स यूज कर लिया है, तो इसके पास कितने चॉइस बचे, इसके पास 3 चॉइस बचे। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। Going to the next problem, how many 5-digit odd numbers can be formed using 0 1 2 3 4 5 without repetition? How many 5-digit odd numbers can be formed using digit 0 1 2 3 5 without repetition? सेम कॉन्सेप्ट है, मैं ये सवाल आपको एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। सेम कहानी है, आपको पता है 5 डिजिट नंबर में 5th प्लेस पे, दैट इज 10,000 प्लेस पे आपको जीरो नहीं डाल सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ
5 चॉइसेस होंगे। एट द सेम टाइम जैसे ही आप 1000 प्लेस पे जाएंगे तो फिर से आपके पास 5 चॉइस होंगे, क्योंकि 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद रिपीट चीज़ें कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम विथ रिपीटेशन में तो आपको पता ही है कि आप रिपीट करा सकते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 2 कैन बी फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी हो गया है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 2 कैन बी फॉर्म। अब बताइए 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 से होना चाहिए। सिंस हमारे कलेक्शन में 6, 8 नहीं है तो मैं 6, 8 को हटा देता हूं। तो आपके पास 3 केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। देखो, एक केस बनेगा एंडिंग विथ 0, एक केस बनेगा एंडिंग विथ 2, एक केस बनेगा एंडिंग विथ 4। तो आगे कितने बच गए? आगे 4 डिजिट्स आ गए, यहां पे 4 डिजिट्स आ गए और यहां पे 4 डिजिट्स आ गए, है ना। अब आपको ये 4 स्पेसेस को फिल अप करना है। अब सिंस जैसे ही आपने यहां पे 0 डाल दिया तो आपके पास कितने चॉइस है? आपके पास 5 चॉइसेस है। तो आप यहाँ पे 5 डालोगे, यहाँ पे 4 डालोगे, यहाँ पे 3 डालोगे, यहाँ पे 2 डालोगे, क्योंकि आप 0 ऑलरेडी डाल चुके हो तो इस पर कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसको कह दोगे 5 फैक्टोरियल। केस में है और का मतलब आपको पता है, और का मतलब क्या होता है बताइए? और का मतलब होता है ऐड। तो ये तीनों केसेस को ऐड करना है। तो इसका तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, या आप इसको सीधे लिख दो 120। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है? 2। अब यहाँ पे आपके पास कितने चॉइसेस है? यहाँ पे आपके पास 0, 1, 3, 4, 5 ये नंबर्स बच गए, जिसमें आप 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 डालोगे तो 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे कितने चॉइस हैं? 4। यहाँ पे फिर से कितने चॉइस हैं? यहाँ पे 4 हो गए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कहानी वही है। फिर यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो क्या हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्या हो गया इसका आंसर? 16, 348, 96। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे अगेन फिर से आप 0 नहीं डाल सकते हो, तो आपके पास 1, 3, 4, 5 4 ही ऑप्शन है। यहाँ पे आप 0 डाल सकते हो तो आपके पास अभी भी 4 ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो टोटल कितने चॉइस हो गए आपके पास? टोटल चॉइस हो गए आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट मेक्स इट 96। So final answer is going to be 120 plus 96 plus 96, which is going to be 192 plus 100, 292 plus 20 is 312. So लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे। आपको ये जो 15 क्वेश्चंस हमने किए हैं और जो हमने फैक्टोरियल्स की बात किए हैं, ट्राई टू एसिमुलेट दैट। वी विल बी ऑल्सो गिविंग यू एडिशनल शीट्स फॉर दैट सो दैट यू एनहांस योर प्रैक्टिस. We'll be sending you that assignment personally on your WhatsApp group. So first you master these 15 questions, and if you are facing any problem, do write us, do email us. We will provide you our online session on quantitative aptitude series as well. I hope you all are getting all your doubts and queries handled in your online sessions. Okay, but chalo, so अभी combinatorics खत्म नहीं हुआ है, अभी combinatorics शुरू हुआ है। तो अभी combinatorics की और heights को हम लोग अचीव करेंगे, अभी और भी interesting चीजें combinatorics में देखेंगे। So let's meet again very soon. Bye bye, take care.